So last lecture में हम लोग डिस्कस कर रहे थे projectile on inclined plane, right? And we have derived formulas for projectile on inclined plane. Question से start करेंगे हम लोग. I'll share the screen with you. चलो go for this question number 8. इसको solve करेंगे. Okay, question number 8 solve करिए. In the figure shown, find the time of flight along the projectile and range आपसे पूछ रहा है OP. Question says that so we are having the inclined plane like this. ऐसे हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया. So the velocity of projection दिया है 20√2 meter per second. This angle they have given us is 45 degree. ये एंगल आपको दे दिया उन लोगों ने 37 डिग्री. आपसे क्या पूछ रहा है वो? फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर 1 और नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे करोगे? What is the formula for time of flight? To use sin alpha minus beta upon g cos beta. हाँ, so first part में चलेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी आपको कैलकुलेट करना है, t is equal to 2u sin alpha minus of beta by g of cosine beta. अगर बेटा कंफ्यूज नहीं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि अल्फा प्लस बीटा आपको 45 प्लस 37 है, क्योंकि ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री. सॉरी, ये पूरा एंगल 45. हाँ, पूरा एंगल 45. सो प्लेस कर दीजिए. सो t इज इक्वल टू व्हाट? 2 into u 20√2 साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस ऑफ 37 डिग्री by g of cos 37. How will you be solving this? इसको कैसे सॉल्व करोगे? Sin 45 minus 37. How will be getting the value of this? देखो, इसके लिए Sin of a minus b. हाँ, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है sin a minus of b is sin a cos b plus minus of cos a sin b. ये होता है ना फॉर्मूला. sin a cos b minus of cos a sin b. So we'll place this here. So time of flight 2 into 20√2 into sin 45 cos 37 minus cos 45 sin 37 divided by 10 into this is what? 4 by 5. Am I clear? Now this 0 से 0 eliminate हो गया. This is 2 2s are 4. ये 4 eliminate हो जाएगा. This will go up. So time of flight कितना हो गया बेटा? Is it 5√2 into sin 45 is what? 1 by √2. Cos 37 is 4 by 5 minus of 1 by √2 into what? Am I clear?
Yes, sir. Okay. So what will be time of flight from here? So time of flight हो जाएगा 5√2 into 4 by 5√2 minus of 3 by 5√2. So if you solve this, so this implies time of flight 5√2 by 1 by 5√2. This 5 and 5 will be eliminated. So time कितना फॉर्म हो गया? 1 second. Am I clear? Yes. Okay. Got the time? टाइम सभी को क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया मैंने टाइम को? सिंपल फॉर्मूला यूज किया टाइम के लिए जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया. सेकंड केस में हाउ विल बी गेटिंग द रेंज? रेंज कैसे मिलेगा? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे रेंज के लिए? एक मिनट रोहन, also the selects. यस, बाकी लोग भी बोलो रेंज का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा? Two u sine square 2u square sine alpha minus beta into cos beta upon g cos beta. cos alpha, no? Yes, sir, cos alpha. So the formula for range was okay. Good, Rohan. So 2u square sine of alpha minus of beta into cos alpha by g of cos square beta. I hope you remember this. Was that cos square beta? Yes, sir. Okay. So range place कर देंगे 2 into 20√2 sine alpha, which is 45 degree minus of 37 degree into cos of 45 degree divided by g into, the g stands for 10, into cos beta, which is 37. Cos 37 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? Is it 4 by 5 का स्क्वायर? So what will be range? 400 into 2, and the value of this we already have calculated here. This is 1 by 5√2, into 1 by 5√2. Cos 45 is √2 divided by 10 into 16 over 25. Am I clear? So which means the range will be 2 2s are 4 2s are 16. 16 into 100. This will go up 25 divided by 10 into 16 into 5 into 2. This will be here. So 1070 eliminate ho jata, 16 and 16 will get cancelled. This is 5 5s are 25. 5. So which means the range will be equal to what? 25 meters. Is it okay with range? Sin 45 minus 37 का value already हमने calculate किया था 1 by 5√2. So instead of this, I have just kept 1 by 5√2 here. This is 220 का square 400. √2 का square is 2. Cos 45 is 1 by √2 10. Cos 37 is 4 by 5 का square 16 by 25. This will go up. And let's say the calculations. Am I clear with the calculation, everyone? Very good, Kiran. Good, Bhumika.
चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Okay. I'll share the screen again. You have to solve it. थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, अपने आप जम जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस है। चलो करो, एग्जाम्पल नंबर 9। सो इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, अगेन द सेम थिंग इज देयर, इस बार ऊपर से फेंक रहे हैं। सो यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया, दिस एंगल दे हैव ऑलरेडी गिवन 37 डिग्री। आपने फायर किया प्रोजेक्टाइल को लाइक दिस 20√2 मीटर पर सेकेंड, is making an angle of 37 degree from here। 37 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है इधर से, सॉरी 45 डिग्री का एंगल, हाँ सॉरी 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड नंबर 1 फ्लाइट, नंबर 2 रेंज। So these are the two things they have asked. चलिए, so of course if this angle is 37, this angle will be also 37 ना। अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी तो 37 हो जाएगा। सो फर्स्ट केस में दे आर आस्किंग अस टू गेट टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u sin अल्फा प्लस ऑफ बीटा ओवर g cos बीटा। यही होता है क्या फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का? ध्यान रखना, दिस एंगल अल्फा इज मेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और पिछले वाले केस में भी हॉरिजॉन्टल से था। कभी कभी एंगल यहाँ से भी दिया रहता है, सो दैट होल विल बिकम अल्फा प्लस बीटा। सो कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट? 2 × 20√2 into sine of 45 degree plus 37 degree by g of cos 37 degree। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 × 20√2 into sine 45 degree into cos 37 degree plus cos 45 degree into sine 37 degree divided by 10 into what? 4/5। 7 seconds हमें, okay, चेक कर लेता हूँ। आई हैव आंसर फॉर दिस, यस करेक्ट, 7 seconds इज राइट। सो टी कितना हो जाएगा? 20 × 2√2, actually this will become 40 × √2, 1/5, so this is 4/5√2 plus 3/5√2 divided by this 40 and 40 will get cancelled। So from here time कितना हो जाएगा? 5√2 into 7/5√2, this 5√2 will get cancelled। So time कितना हो गया?
7 seconds. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. एक्सीलेंट अमियन, वेरी गुड बेटा. क्लियर है पॉइंट यहाँ तक सभी को? टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 7 seconds. Is it okay? Now B part में they are asking us to get range. क्या फॉर्मूला यूज करोगे रेंज के लिए? 2u square sin alpha plus beta cos alpha by g of cos square beta. ये फॉर्मूला यूज करेगा ना. 2u square sin alpha plus beta by into alpha plus beta into cos alpha by g of cos square beta. So range will be sine of 45 degree plus 37 degree. Alpha here is 45 degree. 10 into 4 by 5 का whole square. Is it clear? So range कितना आ जाएगा? 2 into 400 into 2 स्क्वायर करने के बाद इसको हमने ऑलरेडी भी जस्ट पीछे कैलकुलेट किया. Sin 45 plus 37 is 7 by 5 root 2 into what? 1 by root 2. 16 by 25 into 10. So range कितना हो जाएगा? 4 into 4, 16 into 100 into 7. This will go up into 25 divided by 5 into 2 into 16 into 10. 25. So range कितना हो जाएगा? Is it 25 into 7? 175 meters. Is it clear? Yes, sir. Any doubt in this? किसी को कोई डाउट इसमें? Okay, good. Remaining students, is it clear बेटा? Calculation wise समझ गया? Yes, sir. Okay. चलो, let's move forward. Last slide. एक मिनट रुकिएगा. डन एवरीवन? सबको क्लियर हो गया बेटा? क्लियर एवरीवन? सबको समझ गया? यस सर. ओके, गुड. चलो, गुड, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. These are tough questions, बेटा. These are not so easy. अच्छे सवाल में काउंट होता है ये प्रोजेक्टाइल में. चलो, एग्जांपल नंबर 14. Also very good question.
चलो देखते हैं इसको। सो व्हाट दे सेइंग इज हॉरिजॉन्टल सरफेस में ऐसा हमारा प्लेन है, ऐसे हमारा प्लेन है। दिस एंगल मेड हियर इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल मेड हियर इज 60 डिग्री। सो ऑफ कोर्स ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दिया नहीं है बट वो हिडन इंफॉर्मेशन है। Two inclined planes OA and OB having inclinations 30 and 60 degree with the horizontal respectively intersect each other at point O as shown in figure. A particle is projected from point P with velocity 10 root 3. So P point से, here is my P point, यहाँ से पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है 10 root 3 meter per second से, and such that this particle is having what angle? 90 degree. So आपने इसको परपेंडिकुलरली यहाँ से प्रोजेक्ट किया है like this. Angle of projection दिया है 90 degree. Okay. If the particle strikes the plane OB perpendicular at Q, calculate the time of flight. So ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आके ये इंक्लाइन को जब हिट किया है लेट्स से v मीटर पर सेकंड, ये भी परपेंडिकुलर ही हिट किया है। So ये जो हिट किया है ये भी कितने एंगल पे हिट किया है? 90 डिग्री पे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी विथ व्हिच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन, हाइट h फ्रॉम पॉइंट P वेयर डिस्टेंस pq। तो पहले तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया, किसे निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट? एक काम करो, ये एंगल 90 डिग्री दिया है, सो जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व द कंपोनेंट्स। कितना एंगल होगा? ये 30 है तो क्या ये भी 30 होगा? राइट, सी इफ दिस इज 30, 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो क्या ये एंगल 30 होगा? और अगर ये एंगल 30 होगा तो क्या वापस से ये एंगल 60 हो जाएगा? होएगा 60? Yes, sir. So what will be this now? 10 root 3 cos of 60 डिग्री, और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 10 root 3 sin of 60 डिग्री। बरोबर है क्या? नाउ सी, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 30 डिग्री ही है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? v ऑफ cos 30 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v ऑफ sin 30 डिग्री। चेक करो पहले मैंने जो कंपोनेंट रिजॉल्व किया है, चेक दैट आउट। होगा ऐसा? होगा ऐसा? ये Yes, अगर sir. 30 है, 30 दिस इज 60। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है कि सेम रह जाता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रह जाएगा ना? Same. Same. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will remain same। so इसका मतलब है 10 root 3 into cos of 60 degree is equal to v of cos 30 degree। so 10 root 3 cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। cos 30 कितना हो गया? root 3/2। so what will be v from here? is it 10 meter per second? v कितना हो जाएगा? is it 10 meter per second? yes or no?
Yes. Yeah. Okay. अब आगे देखिए. Once we have this 10 meter per second, what will be the vertical component? ये कितना हो जाएगा? 10 root 3 sin 60. Is it equal to 10 root 3 sin 60 is what? Root 3 by 2. This is 5. Is it 15 meter per second the velocity here? और ये कितना हो जाएगा? Sin 30 is 1 by 2. Is it 5 meter per second? Yes. अब वर्टिकल डायरेक्शन में जी नीचे लग रहा है. कैन वी अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन? अगर हम सोचेंगे तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कैन वी यूज काइनेमेटिक इक्वेशंस? आंसर इज यस, वी कैन. सो v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at. देखो फाइनल वेलोसिटी नीचे है, सो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ कोर्स. इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, जी भी नीचे एक्ट होगा. Of course, that will be again negative. So minus of 10 into t. So this is minus of 20 minus of 10 into t. Good, Bhumika. So after solving this, we got it to minus minus eliminate हो जाएगा. तो टाइम कितना लगा इसको उधर जाने में? 2 seconds. Am I clear? Yes, sir. Yes. ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया. अभी सेकंड पार्ट में क्या कुछ पूछ रहा है? वेलोसिटी विद व्हिच द पार्टिकल विल स्ट्राइक ओबी. वो तो निकाल लिया हमने. किस वेलोसिटी से हिट करेगा पार्टिकल? 10 मीटर पर सेकंड ना. बी पार्ट. सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल विथ हिट प्लेन ओबी. सो ओबी प्लेन को पार्टिकल किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है? स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है ना. With this velocity, particle will hit plane OB. This is O, A, B. So with this velocity, particle will hit plane OB. Am I clear? ऑलरेडी हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है इसको. दो पार्ट हो गया क्वेश्चंस का. थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? हाइट h फ्रॉम पॉइंट P वेयर इट विल हिट. आपसे ये हाइट पूछा गया, कितना हाइट ऊपर जाके इस पे हिट करेगा. थर्ड पार्ट में पूछ रहा है where it will hit plane OB. ये कह रहा है ना. कैसे कैलकुलेट करोगे हाइट? हाउ विल बी गेटिंग दिस हाइट बेटा? क्या हाइट ये वर्टिकल डायरेक्शन में है? Yes. ओके. सो दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन. एक काम करो, वर्टिकल डायरेक्शन में सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं सिंपली. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as. सो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास था -5 का स्क्वायर. दिस वाज माय फाइनल वेलोसिटी -5 वर्टिकल डायरेक्शन में. और इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कितना था? 15. ठीक है, 15 प्लस h. So 2 into 10 into h. 15 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर. So 2 into 10 into h. 20 into 10. So height कितना आ जाएगा? Will that be equal to 10 meters? एक मिनट, इसका कैलकुलेशन एरर हुआ.
सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग अस टू गेट हाइट h above point p where हाइट ऑफ p, अच्छा हाइट ऑफ p पूछ रहा है फ्रॉम पॉइंट ओ, ये तो मैंने ये वाला हाइट निकाल दिया। सो दिस आई हैव गॉट दिस, ये वाला हाइट निकाला मैंने अभी, ये वाला हाइट निकाला, कितना ऊपर जाएगा, आपसे पूछ रहा है ये हाइट ऑफ p फ्रॉम पॉइंट ओ। कैसे कैलकुलेट करोगे हाइट ऑफ p फ्रॉम पॉइंट ओ? Sir, height of B from point O उससे maximum height of projectile minus करें। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल माइनस कर देंगे, व्हाई? तो फिर हमें वो P पॉइंट की हाइट मिल जाएगी। ओके, और कुछ सोचो जरा और कल करके मुझे बताओ। ये जो मैंने हाइट अभी निकाला 10 मीटर, ये कौन सा हाइट था? मैंने जो अभी हाइट ये निकाला है 10 मीटर, ये कौन सा हाइट है? इज इट द हाइट ऑफ दिस पी एन ओ, सॉरी पी और ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हाइट है 10 मीटर टोटल। सो 10 मीटर इज दिस हाइट, ये और ये, तो ये वाला हाइट है 10 मीटर। आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे ये वाला हाइट पूछ रहा था, आस्किंग यू टू गेट दिस हाइट। सो पूछ रहा है एक्चुअली आपसे कि हाइट ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ। चलो लेट्स फाइट फॉर इट, करिए सब लोग सॉल्व। I tell you Mayuresh, na height 10 meter was this. This is my 10 meter. ये वाला हाइट 10 मीटर है। आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे ये वाला हाइट पूछ रहा है। गो फॉर इट, फटाफट करो। और फिर बाद में आपको ये भी कैलकुलेट करना है पी क्यू। सोचो, आई गिव यू 1 minute टाइम टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ पी। पी क्यू इज 20। यस करेक्ट बेटा, पी क्यू 20 है। फाइंड आउट दिस हाइट फर्स्ट। चलो पहले पीओ तो ये निकाल लेते हैं, पी क्यू डिस्टेंस, फिर वो वाला हाइट निकालते हैं, लास्ट में करेंगे। हाउ विल बी गेटिंग दिस डिस्टेंस फर्स्ट? ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस फर्स्ट, पी क्यू। पहले पी क्यू निकालते हैं। दिस इज माई पॉइंट क्यू। तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर वो लास्ट में वो करेंगे। डिस्टेंस पी क्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ये पॉइंट पी, लेट्स मी मेक दिस एज, ये वाला पॉइंट को मैं आर पकड़ लेता हूँ, ये वाले पॉइंट। सो ये डिस्टेंस कितना होगा पी आर? सो ये वाला डिस्टेंस, आप ये वेलोसिटी आपका हो गया 10√3 cos 60 डिग्री, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिला था 2 सेकेंड्स।
सो व्हाट विल बी डिस्टेंस PR? PR कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 10√3 into cos of 60 degree, 10√3 into cos 60 degree into time 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं. So 10√3 cos 60 into 2. So what is the value? PR 10 into √3 cos 60 is 1/2 into 2. This will get cancelled. So PR कितना हो जाएगा? Will it be equal to 10√3 मीटर होगा. अगर हम यूज करें इन ट्रायंगल PQR, ये वाले ट्रायंगल में PQR, इस ट्रायंगल में अगर आप देखो, so what we can say from here? Can we say PQ का स्क्वायर is equal to PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर? अगर हम ये वाले ट्रायंगल में देखें तो कैन वी से कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर. ठीक है. सो विच इंप्लाइज दैट PQ का स्क्वायर, ऑलरेडी मैंने P ये निकाला हुआ है हाइट, ऑलरेडी वी हैव दिस हाइट विच इज 10 और ये आपका 10√3. कितना हो जाएगा बेटा? ये 10 का स्क्वायर प्लस, सो PQ कितना हो जाएगा? 100 प्लस 300. So this implies कि PQ will be equal to what? Under root of 400. So PQ कितना हो जाएगा? Is it equal to 20 मीटर? तो क्या आपको ये वाला हाइट मिल गया 20 मीटर? Do we have that height 20 मीटर? ये हाइट मिला ना बेटा PQ, ये डिस्टेंस मिला ना PQ जहां पे जाके हिट करेगा. सो दिस वी गॉट एज 20 मीटर्स. Am I clear? Yes, sir. Okay. कोई डाउट इसमें? पक्का कोई डाउट इसमें? Anyone has any doubt in this? To get this distance PQ? नहीं ना? क्लियर है सबको ये पॉइंट? डिस्टेंस PQ कैसे निकाला मैंने? ये डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल लिया मैंने, ये आपको 10 मैंने कैलकुलेट किया हुआ था ऑलरेडी. सो हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया. सो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से. नाउ अभी मुझे ये डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, इसको जरा समझते हैं. डिस्टेंस, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा लेंथ ऑफ OP, लेंथ ऑफ OP. अब ये कैसे करें? इसको करने के लिए आप सिंपली एक ही प्लेन पकड़ के समझो, तब इजी हो जाएगा डिस्कस करना. एंड द एंगल मेड हियर वाज व्हाट? 30 डिग्री शायद एंगल बना हुआ था, 30 डिग्री एंड 10√3 से फेंका. सो दिस एंगल वाज 30 डिग्री. प्रोजेक्ट किससे किया है? 10√3 मीटर से 90 था. so ये एंगल वापस, ये एंगल क्या हो जाएगा? 60. सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस बेटा? ये वेलोसिटी क्या होगा? 10√3 cos of 60 डिग्री, और ये क्या होगा? sin of 60 डिग्री. Am I clear? Yes. Okay. कैसे एनालाइज करेंगे? इसको समझने के लिए आप क्या करो? देखो, इसको समझने के लिए आप क्या करो? फॉर सिंप्लिसिटी, थोड़ा ऐसे फॉर सिंप्लिसिटी आप क्या करो? ऐसा आप y एक्सिस एज्यूम कर लो. लेट मी हैव दिस एज y एक्सिस.
और दिस हैज एक्स एक्सिस। हम लोग किसी को भी y पकड़ सकते हैं, किसी को भी x पकड़ सकते हैं। तो इसको मैंने x एक्सिस पकड़ लिया, दिस आई हैव टेकन y एक्सिस, और वाइस वर्सा जो आपको लेना है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर लगेगा g नीचे। मुझे बताओ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग कितना है बेटा? इज इट 0? क्योंकि वेलोसिटी आपका x एक्सिस के अलोंग है ना, देयर इज नो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ये एंगल 30, ये 90, तो ये एंगल कितना फॉर्म होगा? 60 डिग्री। तो इधर का कंपोनेंट कितना हो गया? g ऑफ cos 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? g ऑफ sin 60 डिग्री। So, अगर आपको ये पहले एक काम करो, ये डिस्टेंस निकाल दो OP, है ना। So what will be OP? So along inclined plane, along inclined plane। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे बेटा तभी बात बनेगी। मैंने इसको एक्स एक्सिस पकड़ा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर को, और along इंक्लाइन प्लेन को मैंने y पकड़ लिया। सो वेलोसिटी मेरा इनिशियली x के along है, y के along कोई भी वेलोसिटी नहीं है। ग्रेविटी इधर लग रहा है g, तो थीटा 90 60, तो g cos 60, इसका मतलब कि कितना हो जाएगा? 10 1/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पहले हम लोग ये निकालते हैं डिस्टेंस OP। सो along inclined plane, since my acceleration is constant, हम लोग क्या लगा सकते हैं? s is equal to ut plus half at square। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा OP? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी along inclined? inclined के along इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। 0। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया, हाफ इंटू 5 2 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस जो आपको OP मिलेगा वो कितना होगा? हाफ इंटू 5 इंटू 4, दिस विल गेट कैंसिल, व्हिच मींस कि OP विल बी इक्वल टू 10 मीटर। So, अगर हम ये ट्रायंगल में देखें, ये 30 डिग्री है, ये हाइट आपको h पूछा गया है। सो साइन ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा? h by OP। सो व्हाट इज h हियर? OP into साइन ऑफ 30 डिग्री। h कितना हो जाएगा? 10 into साइन 30 इज व्हाट? 1/2 5। h कितना मिलेगा आपको? 5 खत्म, यही कर रहा हूँ। Is it clear? Is it clear? Any doubt in this बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक, good. Shall we move forward? यस सर। चलिए, सो गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। चलो 7.10, गिव इट अ ट्राई। दो प्रोजेक्टाइल है अभी। So particle A is projected with an initial velocity of 60 meter per second at an angle 30 degree with horizontal. At the same time, a second particle B is projected in the opposite direction with a velocity of 50 meter per second from point A
at a distance of 100 meters from A, if the particle collide in air, find the angle of projection alpha of the particle, time when the collision will take place, the distance of P from point O, where collision occurs. So सारे कुछ बताना है हमें. So इस पर्टिकुलर केस में ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है. सो यहाँ से एक पार्टिकल कोलाइड किया, कोलाइड नहीं किया, प्रोजेक्ट किया हमने पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड से. एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, 30 डिग्री. Here from here we have projected another particle at 50 meter per second and the angle is alpha. ठीक है, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस दिया ना, this they have given us as 100 meters. ठीक है, ये जो डिस्टेंस दिया वो 100 मीटर है. If both the particles collide in air, find the angle of projection of the particle B. दोनों पार्टिकल एयर में कोलाइड कर रहे हैं. अब अगर एयर में कोलाइड कर रहा है, so what that mean? कभी एयर में कोलाइड करेगा? कभी ये एयर में कोलाइड करेगा? पहली बात, आप x का कंपोनेंट तोड़ दो. व्हाट विल दिस कंपोनेंट? 60 ऑफ cos 30 डिग्री. ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 60 ऑफ sin 30 डिग्री. ठीक है, नाउ व्हाट विल दिस कंपोनेंट? 50 cos अल्फा. और ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 50 ऑफ sin अल्फा. इस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा. लेट्स से ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है. मुझे एक बात बताइए, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा? इज इट एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी? Yes, sir. राइट. So acceleration of particle A with respect to B, A का acceleration नीचे है, let's say that is negative minus g. B का भी acceleration negative नीचे की तरफ ही है. ध्यान से सुनना मेरी बात ना बेटा, थोड़ा सा समझने जैसा है. So acceleration of particle A with respect to particle B कितना हो जाएगा? Is it minus g or plus g? Will it be 0 meter per second square? इसका मतलब क्या है कि relative acceleration of particles in projectile motion is 0. इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल कैसे चल रहा होगा? इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल कैसे चल रहा होगा? Constant velocity. कांस्टेंट वेलोसिटी से. इसका मतलब इज इट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन? Yes, sir. हाँ, प्लीज रिमेंबर दिस. हाँ, एक्चुअली ये प्रोजेक्टाइल में चल रहा है, लेकिन अगर आप इस पे एज ऑब्जर्वर बैठ जाओगे या इस पे एज ऑब्जर्वर बैठ जाओगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. इसका मतलब कि मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन खत्म हो गया. इधर वेलोसिटी, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा. राइट. So can we say conclude from here that motion of a
motion of projectile with respect to another projectile will be a straight line. इतना ही समझना है इसमें। क्यों स्ट्रेट लाइन हो रहा है? बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन ही नहीं है। रिलेटिव अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। इज इट ओके एवरीवन? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों पार्टिकल को एयर में कोलाइड करना है तो क्या दोनों का वो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए? इसका जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इसका होना, दोनों साथ में जाएगा बेटा तब ना टकराएगा एयर में। अगर ये तेजी से एयर में जाएगा, ये स्लो जाएगा, तो कभी कोलिजन होगा क्या दोनों के बीच में? नहीं। नहीं ना। सो इफ टू पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग इन एयर, if two particles are colliding in air, then component of velocity of two particles along vertical should be same. मुझे बता, ये दोनों पॉइंट जमा सबको? Yes, sir. वेरी गुड। सो व्हाट डज इट मीन? अच्छे से समझना बेटा, नहीं तो कंफ्यूज होता है ये। पहली बात मैंने क्या बोला कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को देखोगे दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ द one projectile with respect to other projectile is 0. इसका मतलब path of the projectile with respect to other projectile is a straight line path. पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर दो प्रोजेक्टाइल एयर में कोलाइड कर रहा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीड टू बी सेम, व्हिच मींस कि 60 of sin 30 degree is equal to 50 into what? Sin alpha. 60 into sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2. 50 into sin alpha 3. So what is sin alpha? 3/5. So what is alpha? 57 degree. खत्म। पहला पार्ट का ये आंसर। हाँ या ना? हो गया सर? अल्फा मिला? समझ में आया अल्फा कैसे कैलकुलेट किया हमने? यस सर। Okay. इसी क्वेश्चन का बी पार्ट आपसे पूछ रहा है, टाइम व्हेन टू प्रोजेक्टाइल्स विल कोलाइड। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेशंस किए। सो बी पार्ट में कह रहा है टाइम व्हेन टू प्रोजेक्टाइल्स विल कोलाइड। टाइम व्हेन टू प्रोजेक्टाइल विल कोलाइड। ये कैसे करोगे? अच्छा, हमेशा अगर दो पार्टिकल चल रहा है तो क्या किसी एक पार्टिकल को रोक दे और क्या उसके रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल को देखे? अब मुझे बताओ, अगर ये दो पार्टिकल कोलाइड करेगा बेटा तो कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से कोलाइड करेगा? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। सो व्हाट वी कैन से, एक काम करो, बी को रोक दो। सो अलोंग एक्स एक्सिस, along x axis, so ये मेरा y एक्सिस था लेट से, और ये मेरा x एक्सिस था। अच्छे से जैसे मैं कर रहा हूँ अभी आपको ऐसे ही करना है। एक्सपीरियंस होगा तो आप अपने हिसाब से खेलते बैठो। along x axis, एक काम करते हैं, b को रोक देते हैं। so velocity of a with respect to b, so initial velocity of a minus initial velocity of b। कर दिया? किसको रोका मैंने? a को रोका है कि b को रोका है? बी।
बी को ऑब्जर्वर बनाया और ऑब्जेक्ट कौन है, ए, इसका मतलब मैं बी के रिस्पेक्ट में ए को देख रहा हूँ, ठीक है। चलो बोलो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, 60 cos 30, ए का वेलोसिटी कितना हो गया, इज इट 60 cos 30, बोलिए वेलोसिटी ऑफ बी 50 ऑफ cos अल्फा, लेकिन अगर ये इधर जा रहा है प्लस लिया मैंने तो ये मुझे क्या लेना चाहिए, माइनस ना, यस और नो, Yes. ओके, सो विच मींस की वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा 60, व्हाट इज द वैल्यू cos 30 कितना हो गया, √3/2 ना, सो प्लेस कर दो यहाँ पे, प्लस ऑफ 50 इंटू 4/5, क्योंकि अल्फा मेरा 37 था और cos 37 4/5 होता है, so this is 30 here 10, so velocity of a with respect to b कितना हो जाएगा 30√3 plus of 40 into, will it be, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसको रोक दिया है यानी दिस हैज टू कोलाइड विद दिस, तो ए वाले पार्टिकल को कितना चलना पड़ेगा बी के रिस्पेक्ट में फॉर कोलिजन, व्हाट विल बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए टू कोलाइड विथ बी, अगर मैंने बी को ऑब्जर्वर बना दिया है तो कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, 100 मीटर। 100 मीटर, यस, सो और कोई एक्सेलरेशन है नहीं उधर, सो वी कैन सिंपली यूज व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, सो स्पीड कितना हो गया 100 by t, 100 by 30√3 plus of 40, what will be the answer, मैं कैलकुलेटर में करके देखता हूँ, √3 बेटा, √2 नहीं, √3 ना, so 100 divided by 30 into 1.73 plus of 40, 1.088, 1.09 आ रहा है, so time which I am having is round करने के बाद 1.09 seconds, this is the answer, so after 1.09 seconds the two will collide. Am I clear properly? अभी क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि जब ये दोनों प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेगा, लेट्स से दैट इज एट पॉइंट P, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम पॉइंट P, अगले पार्ट में आपसे पूछ रहा है सी पार्ट में, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A, ये पूछ रहा है, कैसे करें, हाउ टू गेट दिस, सिंपल है ना, ये कैसे करोगे, इजी कैलकुलेशन है, क्या ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे कैन वी कैलकुलेट दिस डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस हम y कैलकुलेट कर सकते हैं ना, और ये डिस्टेंस हम x कैलकुलेट कर सकते हैं, बरोबर, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैन वी गेट दिस डिस्टेंस, हाँ, सो व्हाट विल बी y हियर, वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे, s is equal to ut plus half of at square, so sy हो गया, what is the initial velocity in that direction, 60 of sin 30, 60 of sin 30 into what, टाइम आपको पता 1.09 minus of half into gravity 10,
into 1.09 का स्क्वायर. Sin 30 is 1/2, so this is 30. So y is equal to कितना हो गया, मैं कैलकुलेशन नहीं करता, 31 into 1.09 minus of 5 into 1.09 का होल स्क्वायर. So this is my y. x कैसे निकालोगे? So x is the horizontal component. तो ये तो सेम ही रहेगा 6. So will it be equal to 60 into cos of 30 degree into t. So x कितना हो जाएगा? 30√3 into 1.09. So यहाँ से आपको x मिल गया. From here we have y. तो d कितना हो जाएगा बेटा? Will it be simply equal to under root of x square plus y square? जो भी आएगा, that will be your answer. Am I clear? ये डबल प्रोजेक्टाइल समझ में आया कैसे अप्रोच किया? Is it clear? Double projectile. Yes, sir. इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ. सो लेट्स से कि ऐसे अगर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है एक पॉइंट से, कभी कभी कंडीशंस भी निकालने के लिए बोलता है u1 मीटर पर सेकंड से. ये मेरा प्रोजेक्टाइल 1 है, ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है. और दूसरा प्रोजेक्टाइल आपने फेंका है u2 मीटर पर सेकंड से. प्रोजेक्टाइल 2 है, मान लो थीटा डैश एंगल पर फेंका, ठीक है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल इज लेट्स से d. और मान लो इस प्रोजेक्टाइल का रेंज r1 है. r1 क्या हो गया? रेंज ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल. और r2 हो गया रेंज ऑफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल. सो कभी कभी आपसे कंडीशन भी पूछता है. मुझे एक बात बताओ, केस 1 कि अगर r1 प्लस r2 इफ इट इज मोर देन d, इसका रेंज और इसका रेंज d से ज्यादा है, तो प्रोजेक्टाइल कहाँ टकराने का चांस है? इसका जो रेंज है r1 और इसका रेंज है r2, दोनों का समेशन इफ इट इज मोर देन d, तो प्रोजेक्टाइल को टकराने का कहाँ पे चांस है? एयर में ना, क्योंकि रेंज बड़ा है, सो दे कैन कोलाइड इन एयर, राइट. दिस मीन्स कि टू प्रोजेक्टाइल can collide in air. बरोबर. So, अगर r1 plus r2 इसका रेंज और इसके रेंज का समेशन इफ इट इज मोर देन द d डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल्स, सो अगर r1 plus r2 d से बड़ा है, सो दे कैन कोलाइड इन एयर. Am I clear? अब मुझे एक बात बताओ, अगर r1 plus r2 इफ इट इज इक्वल टू d, तो कहाँ पे कोलाइड करेगा? यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल आया और यहाँ से एक दूसरा प्रोजेक्टाइल आया, लाइक दिस. सो दो प्रोजेक्टाइल ऐसे आया और इसके रेंज का समेशन r1 और इसके रेंज का समेशन r2 अगर वो d के बराबर है, तो प्रोजेक्टाइल कहाँ पे कोलाइड करेगा? बोलो बेटा, कहाँ पे प्रोजेक्टाइल? यहाँ पे कोलाइड करेगा ना दोनों प्रोजेक्टाइल, यही तो मीट कर रहा है, राइट. सो व्हाट वी कैन से, टू प्रोजेक्टाइल विल कोलाइड. मैंने यहाँ पे कैन लिखा है, यहाँ विल लिख रहा हूँ. वहां पे टकरा सकता है, टकराएगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है, टकरा सकता है. लेकिन अगर r1 plus r2 d के बराबर है, तो ऑफ कोर्स वो टकराएगा. टू प्रोजेक्टाइल विल कोलाइड ऑन ग्राउंड, राइट. इसका नेक्स्ट केस देखिए, अगर r1 plus r2 जो समेशन आप ले रहे हो, इन दिस केस अगर मेरा r1 plus of r2 if it is less than d, तो क्या होगा? कभी दोनों प्रोजेक्टाइल टकराएगा क्या? अगर r1 plus r2 d से कम है, तो क्या प्रोजेक्टाइल कभी टकराएगा? No. कभी नहीं टकराएगा. ये इधर ही गिर गया, ये इधर ही गिर गया, कभी मीट करेगा ही नहीं d से करेगा.
So two projectile will never collide. So रेंज का समेशन अगर d से ज्यादा है तभी वो प्रोजेक्टाइल टकरा सकता है. मैं इसलिए कैन वर्ड यूज किया, टकरा सकता है. टकराएगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है. टकराएगा ही उसका ये कंडीशन, वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, राइट. अगर r1 प्लस r2 d के बराबर है तो ग्राउंड पे आके टकराएगा. यहाँ से ये इधर गिरेगा, यहाँ से इधर गिरेगा, आके ग्राउंड पे टकरा जाएगा. लेकिन अगर r1 प्लस r2 d से कम है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. अगर r1 प्लस r2 इफ इट इज लेस देन d तो वो कभी नहीं टकराएगा, वो एयर में कभी मीट करेगा ही नहीं. दीज आर द थ्री कंडीशंस. Am I clear everyone? समझ गया कैलकुलेशन कैसे किया मैंने इसको? Yes, sir. सारे कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छे हैं इसमें. चलो आगे बात करते हैं. फिर अगले टाइम पे एक मूविंग कार में, नेक्स्ट लेक्चर में मूविंग कार में प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो क्या होगा वो कर लेंगे. तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे. शेयर स्क्रीन विथ यू फॉर सॉल्विंग. और मैं कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा जो आपको सॉल्व करना है. चलिए गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8. एंगल अच्छे से नोटिस देखना ध्यान से, एंगल कितना दिया है. चलो एनालाइज करें. A particle is projected along an inclined plane as shown in figure. What is the speed of particles when it collides at point A? So यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है. So ये वेलोसिटी आपको दिया है. What is this they have given? 10 मीटर पर सेकेंड. ये एंगल दिया है 30 डिग्री और ये भी दिया है 30 डिग्री. ये वाला पॉइंट ए है आपका एंड दिस पॉइंट इज ओ. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेविटी आपको 10 ले लेना. फाइंड स्पीड with which find speed particle will hit incline at point A. ए पॉइंट पे पार्टिकल किस स्पीड से हिट करेगा वो आपको कैलकुलेट करना. एक काम करो, पहले काम को टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो. 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा होगा ना.
यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया है ना बेटा अपने को, 30 डिग्री तो अल्फा माइनस बीटा ही है, ये टोटल अल्फा होता है, ये बीटा होता है, सो दिस इज माय अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा आपको डायरेक्टली 30 दिया है, सो t into 10 into sine of 30 degree by cos of 30 degree. What is the values? Sin 30 is 1 by t, 2 and cos 30 is root 3 by 2. So time of flight कितना हो जाएगा? 20 by root 3 मीटर पर सेकेंड। क्या यही टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ है ना? अब एक काम करो, वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ दे इधर, 10 of cos 30 डिग्री इंक्लाइन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 10 of sin 30 डिग्री। सो व्हाट दिस विल बी? सो जिससे आपने इधर फेंका था इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, हिट भी उसी से करेगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाला चेंज कर जाएगा थोड़ा सा, ये निकाल लेंगे तो रिजल्टेंट हमें आराम से मिल जाएगा। कैसे निकालोगे वो? इधर लग रहा है जी, सो जी का कंपोनेंट तोड़ दीजिए, ये एंगल 30, ये एंगल 30 तो ये एंगल 60, ये 60 तो ये वापस से 30 होगा। इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जी ऑफ cos 30 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा? जी ऑफ sin 30 डिग्री। सो विच मीन्स व्हाट? 10 into sin 30 is 1 by 2, which is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो along inclined plane देखिए, along inclined plane कितना क्या लगाएंगे बेटा inclined plane के along? What will be using along inclined plane? मुझे बताओ inclined plane के along मेरा acceleration constant है कि variable along the inclined plane? Constant. लगा दीजिए v is equal to u plus of at। So velocity फाइनल आपको निकालना, इनिशियली वी हैव 10 cos 30, तो कितना हो जाएगा? cos 30 is what? हाफ, सॉरी cos 30 is root 3 by 2। 3 by 2 हाँ सॉरी, cos 30 is root 3 by 2, माइनस एक्सेलरेशन तो 5 हो गया, और ये हो गया कितना? 20 by root 3। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 5। सर हाँ बेटा, टाइम कैलकुलेट करते समय आपने जी लिया है क्या वहाँ पे? क्या कैलकुलेट करते समय? टाइम अरे नहीं, 10 यहाँ पे भी तो होगा, सॉरी यार, 10 यहाँ पे भी तो होगा, तो ये 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा ना सर। थैंक यू, 2 होगा जी, ऑलरेडी 10 यहाँ से मिस हो गया था मेरे से, तो 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 बाई रूट 3 से कितना हो जाएगा? 5 रूट 3 minus 10 by root 3। So what will be v from here? 15 minus 5, is it equal to 5 by root 3? होगा 5 by root 3। So क्या इधर वाला वेलोसिटी आपको मिल गया 5 by root 3 मीटर पर सेकंड? Yes or no? रिजल्टेंट निकालिए, रिजल्टेंट निकालो खुद से, I'll hold for a minute। क्या आंसर आएगा? सो रिजल्टेंट स्पीड कैसे निकालोगे? ठीक है, सो v कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, 5 by root 3 का स्क्वायर। So what will be? 25 by 3, रूट से बाहर निकालोगे 5, 4 by 3, will it be the correct answer? 10 by root 3।
आ गया था 10/√3 सभी का? Yes, sir. वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड क्वेश्चन ये। चलो क्लियर है बेटा, एक क्वेश्चन और करिए, गो फॉर दिस वन। मैं ये पूरा शेयर करता हूँ, जेई के लिए है, नीट का अलग से असाइनमेंट शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 या फिर एक कॉमन शेयर करता हूँ जो जेई नीट दोनों के लिए रहेगा। आई विल शेयर दैट व्हिच यू हैव टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, कैसे करेंगे देखो। A particle is projected at an angle of 60 degree horizontal with a speed of 20 meter per second. So आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, so from here we have projected a particle like this. A particle is projected at an angle of 60 degree with horizontal with 20 meter per second. So ये एंगल आपका है at the angle of 20 meter 60 degree 20 taking g as 10 meter per second square. Find the time after which the speed of particle remains half of its initial speed. आपसे पूछा गया है, प्रोजेक्ट किया इसको, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड टाइम when speed of particle remains half of initial speed। यही करना है ना, कैसे करोगे? यहाँ का स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकंड था, सो स्पीड आपको कितना चाहिए? 1 सेकंड आ रहा है, एक मिनट में चेक कर ले, चेक का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव नहीं बेटा, इट्स √3 सेकंड्स, √3 सेकंड्स। √3 seconds। चलो लेट्स वर्क आउट। सो हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड चाहिए मुझे, मतलब दिस एंगल्स वेलोसिटी पहले आपको 20 था, सो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी हियर? शुड इट बी इक्वल टू 10? ओके, सो ये 10 हो जाएगा। नाउ लेट्स से दैट दिस एंगल मेड हियर इज अल्फा, सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ दिस
cos अल्फा, इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, tan of sin अल्फा, here it will become 20 of cos 60 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा, 20 of sin 60 डिग्री, बरोबर ना। so, अगर हम डिस्कस करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा, सो कैन वी से in horizontal direction in horizontal direction 20 of cos 60 degree is equal to what, 10 of cos alpha. What is the value of cos 60? Cos 60 1 by 1 by 2. This is alpha 1 by 2, which is equal to what, cos of alpha. So cos alpha आपका 1 आ गया, implies alpha कितना हो जाएगा 0 डिग्री, अल्फा 0 डिग्री हो गया ना। 0 डिग्री का मतलब कि ये पार्टिकल कहाँ पे है, इज इट एट हाईएस्ट पॉइंट, तभी तो अल्फा 0 होगा। सो पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, हाँ है ना, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा बेटा, तभी तो अल्फा 0 होगा ना। इफ दिस अल्फा इज 0 इसका मतलब पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाई जी, लेकिन इसका मुझे हाफ चाहिए, सो आई नीड टू हैव t बाई 2। सो t कितना हो जाएगा, 2u sin ऑफ 60 डिग्री बाय g। सो प्लेस कर देंगे, 2u कितना दिया था, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया है, 20 इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 ओवर 10। सॉरी इसका हाफ करना है ना, t/2 से एक और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस 2 and 2 विल गेट कैंसल, ये हो जाएगा 10, दिस 10 and 10 विल बी एलिमिनेटेड। सो ये वाला 10 और ये वाला 10 को आपने कैंसिल कर दिया। सो यहाँ से टाइम कितना मिला आपको, इज इट इक्वल टू √3 सेकेंड्स। देखो ऑलरेडी मुझे दिखा अल्फा 0 डिग्री, सो अल्फा 0 डिग्री का मतलब कि पार्टिकल यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, तभी तो अल्फा 0 हुआ। Am I clear? Am I clear? Is it clear बेटा, समझ गया सबको ढंग से? yes sir. फाइन, आज का लेक्चर अच्छे से समझा, टुडे वी डिड वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, अच्छे से सवाल किया हम लोगों ने, समझा सबको प्रॉपर्ली। हाँ क्लियर है सबको, Yes, sir. ठीक है। सो विल क्लोज फॉर टुडे। मैं एक असाइनमेंट शेयर करता हूँ अभी, एंड प्लस दिस पीडीएफ, आप असाइनमेंट सॉल्व करो। कल के लेक्चर में सबसे पहले मैं काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, जो एमटीजी का मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था वो वाला, एंड देन विल डिस्कस द असाइनमेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इज इट क्लियर? सो मेरा एक सजेशन होगा कि क्वेश्चंस आप सॉल्व करके रखो, सो दैट कल जब हम डिस्कस करें वी कैन डू इट मोर फास्टर। इज इट क्लियर? Yes sir. I'll upload recording Kabir by today afternoon तक रिकॉर्ड कर दूंगा। I'll upload the recording of this। ओके बाय। लेकिन कल सब लोग सॉल्व करके रखोगे तो कन्वीनियंट होगा बेटा, डिस्कशन करने में आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। सो प्लीज सॉल्व, स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स, देन विल कम टू प्रोजेक्टाइल। सो कल हम लोग काइनेमेटिक्स का ट्राई करेंगे कि 1.5 घंटे के लेक्चर में we'll be able to solve at least 25 to 30 questions tomorrow। Is it okay? Yes sir. चलो ठीक, बाय।
Bye.